My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are going to discuss a very important theorem, that is Euler's theorem, to find out the remainders. And in that, we'll also be using Euler's torsion function. जिसपे I have already covered that in a previous session, and I will pin the link of that previous session in top. यहाँ पे भी हम क्विकली समराइज करेंगे 1 और 2 मिनट्स में यूलर्स टोर्शन फंक्शन को. बट अगर डिटेल में देखना है, डिटेल में समझना है, उस सेशन को चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर टू चेकआउट दैट फर्स्ट. गुड टू गो, स्टार्ट करते हैं. So our whole and sole purpose in this exercise is to use the cyclicity of remainders. Okay. So what is Euler's theorem? First, let us understand the language and then we'll discuss about the torsion. So if there is a number to the power a to the power phi n and that is being divided by n, ठीक है, where phi n is totient of n. So if you are dividing some number to the power phi n by n, remainder is equal to 1. Remainder comes out to be equal to 1. Okay, if the condition is if a and n are co-prime, यानी कि a and the divisor are co-prime, which implies कि highest common factor between a and n should be equal to 1. Clear? ठीक है. So what is this torsion function? Torsion function or totient, which will be representing by phi of a number or t in short. ठीक है, whichever you prefer. So totient basically tells us about numbers less than n that are co-prime to n. Numbers that are less than n and co-prime to n. Okay, so if our number is a prime number, so let us say we have a prime number है हमारा. So in case of prime number p, the totient of p will always be p minus 1 because prime number के only two factors होंगे, one and that number itself. So any other number will be co-prime to it. Any other number which is less than that prime will be co-prime to it. Isn't it so? कोई common factor नहीं होगा उनके बीच में. So that is why we have p minus 1 total numbers less than n less than p which are co-prime to p. Including this also includes 1 because 1 factor भी होता है हर एक नंबर का और 1 हर एक नंबर से co-prime भी होता है. Because definition of co-prime is that HCF of two numbers if a and b and that is equal to 1, then a and b are co-prime. So 1 के साथ highest common factor हमेशा 1 ही आएगा. So that is why every number is co-prime with 1. Okay, so for a prime number the totient is p minus 1. अगर प्राइम के बजाय कॉम्पोजिट नंबर होगा तो क्या होगा? So let us say our number is n is equal to some prime number 1 to the power a, some prime number 1 to the power a, prime number 2 to the power b, prime number 3 to the power c. So totient of n will be equal to, power से हमें कोई मतलब नहीं है, our only concern is these prime factors. So totient of n will be n multiplied by 1 minus 1 upon p1 into 1 minus 1 upon p2 into 1 minus 1 upon p3. So examples लेते हैं कुछ. Let us say totient of phi के बजाय t लिख देते हैं तो कि तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो. तो totient of 17 क्या होगा? 17 एक प्राइम नंबर है, इट इज अ प्राइम नंबर, तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 17. सो दिस विल बी इक्वल टू 17 माइनस 1. 17 माइनस 1 अगर टोशन के फॉर्मूले से करोगे तब भी बात एक ही है. 17 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 17 कर दोगे और 1 माइनस 1 बाई 17 क्या होगा? दैट विल 16 बाई 17. तो 17 इंटू 16 बाई 17 विल बी 16 इटसेल्फ. तो टोशेंट ऑफ 17 इज 16. टोशेंट ऑफ 7 6 हो जाएगा. टोशेंट ऑफ 9, अब 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज अ कॉम्पोजिट और 9 हमारा 3 स्क्वायर होता है. सो टोशेंट ऑफ दिस विल बी 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3. बिकॉज पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा कंसर्न है सिर्फ प्राइम फैक्टर्स. 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3, सो दैट विल बी 9 इंटू 2 बाई 3. तो टोशेंट ऑफ 9 विल बी इक्वल टू 6. टोशेंट ऑफ 12 is 2 square into 3. So totient of 12 will be 12 multiplied by 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 3. Simple है. So 12 into 1 by 2 into 2 by 3. So 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. 4 will be totient for 12 और 4 totient है यानी कि 12 से छोटे
देयर विल बी 4 सच नंबर्स विच आर लेस देन 12 एंड दे विल बी कोप्राइम टू 12. सो कौन से नंबर्स होंगे ऐसे? 1 होगा ऑब्वियसली, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, देन 7 होगा, देन 11 होगा. तो 1, 5, 7 एंड 11 आर द 4 नंबर्स विच आर कोप्राइम टू 12. ठीक है, 10 नहीं होगा बिकॉज 10 2 फैक्टर आ रहा है. ओके, क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से टोशेंट ऑफ 28. सो 28 इज 4 into 7 या 2 square into 7 to the power 1 बिकॉज प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करोगे. सो टोशेंट ऑफ 28 विल बी 28 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 7. So 28 into 1 by 2 into 6 by 7. So 12 आ जाएगा टोशेंट. ठीक है, अब तक पैटर्न समझ गए होगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो. 28 into 1 minus 1 by 2, 2 फैक्टर है, 7 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है तो 1 by 2 हो जाएगा. बेसिकली 2 minus 1 आएगा न्यूमरेटर में. जब 1 minus 1 by 2 करोगे, सिमिलरली 7 फैक्टर है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 minus 1 6. ओके, और फिर 14 से सिंप्लीफाई कर लिया, 2 into 6 12 आ जाएगा. एक और एग्जांपल, टोशेंट ऑफ 100. 100 is 2 square into 5 square. So total of 100 would be 100 multiplied by 1 by 2 into 5 आ रहा है तो 5 minus 1 4. So 10 से जाएगा, 10 times 10 into 4, 40 will be totient of 100. There will be 40 numbers less than 100 which will be coprime to 100. अब तक बात समझ में आ गई होगी. Is that clear? क्या यहां तक बात समझ में आती है? So now let us go back to our definition of Euler's function, Euler's theorem. So we were saying that if we are having a number to the power totient of n and we are dividing that by n, remainder will be equal to 1. ठीक है, remainder will be equal to 1 और a and n should be coprime. Examples लेते हैं. So first example, let us say we have 2 to the power 12 and we are dividing by 7. So question is what will be the remainder? Remainder क्या होगा? So टोशेंट ऑफ 7 क्या होगा? 7 तो प्राइम नंबर है, टोशेंट ऑफ 7 विल बी 6 और पावर हमारी आ रही है 12. पावर इज 12. सो अगर पावर 6 होता, सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट 2 to the power 6 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव अस रिमाइंडर इक्वल टू 1 बिकॉज 7 का टोशेंट है 6. तो 2 to the power 6 डिवाइड बाय 7 will be giving us remainder equal to 1 because 2 and 7 are co-prime. 2 and 7 are co-prime. This is also very important condition. co-prime होने चाहिए तभी ये फॉलो करेगा. और अगर 2 and 7 co-prime है तो 2 to the power 6 डिवाइड बाय 7 will give us remainder equal to 1. और रिमाइंडर जैसे ही 1 आ जाता है तो हमारा साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि साइकिल फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा रिमाइंडर्स का. तो साइक्लिसिटी विल ऑफ रिमाइंडर्स विल स्टार्ट. सो दिस इंप्लाइज दैट cyclicity of 6 is there in remainders, isn't it so? And if that is so, so 2 to the power 6k plus 1 if that is divided by 7 तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? सेम वैल्यू होगा जो कि हमारा 2 to the power 1 को 7 से डिवाइड करने पे आएगा which is equal to 2 only. और 2 to the power 6k plus 3 divide by 7 रिमाइंडर क्या होगा? सेम वैल्यू which will be when we are dividing 2 cube by 7 और 2 cube is 8 तो 8 by 7 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे एक डाउट आ सकता है जो नहीं भी आया है तो मैं तुम्हें वो डाउट दे रहा हूं और फिर उसको क्लियर कर रहा हूं कि क्यों हो रहा है ऐसा. ओके, बेसिकली इन दिस केस व्हेन वी आर यूजिंग टोशेंट फंक्शन, ठीक है, 2 to the power n by 7, ठीक है, अगर हम यहां पे रिमाइंडर चेकआउट करते, ऑलरेडी साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं तो हम प्रैक्टिस करते 2 to the power 1 by 7 रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा. 2 to the power 2 by 7 रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा. 2 to the power 3 by 7 रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 और रिमाइंडर आ गया इक्वल टू 1 2 to the power 3 में. दैट मींस कि साइक्लिसिटी हमारी कितने की है? 3 की है. साइक्लिसिटी ऑफ 3 है, बट अभी हमने देखा साइक्लिसिटी यहां पे आ रही है 6 की. Isn't it so? तो हमने कैलकुलेट किया साइक्लिसिटी 3 का, बट यहां पे हमें गिवन है साइक्लिसिटी ऑफ 6. डिफरेंस क्यों आ रहा है? व्हाई इज देयर अ डिफरेंस? बेसिकली साइक्लिसिटी ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ? इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि व्हेन वी हैव 2 to the power 3 के रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी 1 ओनली जो कि 2 की पावर 3 में आ रहा है. ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा सेम एज 2 to the power 3 तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1. व्हेन वी हैव 2 to the power 3k plus 1 तो रिमाइंडर विल बी सेम एज दैट व्हेन 2 to the power 1 को डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 2 आ जाएगा. एंड वी हैव 2 to the power 3k plus 2 तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 4. ओके, क्लियर है? साइक्लिसिटी हमारा क्या बन रहा है? 2 to the power 1 में आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, अगेन आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1. ठीक है, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर 2, 4, 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
सो साइक्लिसिटी 3 का है हमारा, बिल्कुल सही बात है। बट अगर हम कहें साइक्लिसिटी 3 इंटू 2 का है तो भी क्या कुछ गलत है? 3 के किसी मल्टीपल में भी अगर हम कन्वर्ट कर दें तब भी तो साइकिल हमारा वैसे ही चलेगा, तो 6 का साइक्लिसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमारा साइक्लिसिटी 3 का है, सिमिलरली वी कैन से दैट साइक्लिसिटी कैन ऑल्सो बी ऑफ 6 फॉर द सेम केस, क्योंकि हमारा 6 में भी तुम देखोगे तो पैटर्न तो वही है 2 4 1 2 4 1, फिर अगली बार भी 2 4 1 2 4 1, फिर अगली बार भी 2 4 1 2 4 1, या फिर साइक्लिसिटी 9 का भी कह सकते हो, क्योंकि 9 में भी देखोगे 2 4 1 2 4 1 2 4 1, नेक्स्ट लाइन में फिर आएगा 2 4 1 2 4 1 2 4 1। सो बेसिकली साइक्लिसिटी कैन बी ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 के इन जनरल। एंड व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, बिकॉज जब हम 7 से यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं टोशेंट, बिकॉज हमने टोशेंट किसका कैलकुलेट किया? 7 का, डिवाइजर का। तो टोशेंट इज डिपेंडेंट ऑन डिवाइजर। टोशेंट किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? डिवाइजर का। 2 से कोई मतलब ही नहीं है, 2 से कोई मतलब ही नहीं है। जो ये हमारा साइक्लिसिटी का मेथड था, यहां पे द न्यूमरेटर, द वैल्यू दैट वी आर डिवाइडिंग, दैट वाज इंपॉर्टेंट, डिविडेंड वाज इंपॉर्टेंट, बट इन दिस केस डिविडेंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिवाइजर इज इंपॉर्टेंट। Divisor is important in case of totient function, and that is why the totient that we are getting might be a multiple of the actual cyclicity, which in this case is 6 हमें cyclicity मिल रहा है, जबकि हमारा एक्चुअल में कैलकुलेट करके 3 आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल मिल रहा है हमें, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस मेथड विल बी हेल्पिंग अस इन फाइंडिंग द साइक्लिसिटी इन वेरी शॉर्ट टाइम। लार्जर नंबर के लिए चीज बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि शॉर्ट नंबर्स में तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, जब नंबर हमारे लार्ज हो जाएंगे तो वहां पे तो प्रॉब्लम आएगा। वहां पे कैसे कैलकुलेट करोगे? तो वहां पे तो डेफिनेटली हमें टोशेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, और टोशेंट अगर हमें मल्टीपल ऑफ साइक्लिसिटी भी दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमारा पर्पस क्या है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट अस से 3 to the power 10 इज डिवाइडेड बाय 11, तो रिमाइंडर क्या आएगा? टोशेंट ऑफ 11 क्या है? 11 इज प्राइम, टोशेंट ऑफ 11 इज इक्वल टू 10, तो टोशेंट ही है हमारा स्टेट में, तो 3 to the power 10 या 3 to the power टोशेंट ऑफ 11 डिवाइड बाय 11, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1 ओनली। अगर 3 to the power 11 होता और डिवाइड करते 11 से, तब रिमाइंडर क्या आता? तो 3 to the power 11 टोशेंट है 11 का 10, एंड पावर है हमारी 10 + 1, सो वी कैन राइट दिस एज 3 to the power 10 into 3 to the power 1, एंड दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 11। तो 3 to the power 10 तो हमें रिमाइंडर 1 दे देगा, और 3 की पावर 1 देगा रिमाइंडर 3, तो 1 into 3, आंसर विल बी 3 ओनली, 3 आंसर आ जाएगा। अगर हमारा नंबर होता 3 to the power 124 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर क्या होगा? तो 11 का टोशेंट तो 10 है, तो 124 को वी कैन राइट एज 12 into 10 + 4, 12 into 10 + 4। अब जितना पार्ट हमारा 10 का मल्टीपल है वो तो हमें रिमाइंडर 1 ही देने वाला है, सो बेसिकली 3 to the power 10 to the power 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 4, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। एंड दिस पार्ट 3 to the power 10 तो हमें +1 रिमाइंडर देगा, तो उसकी पावर 12 भी +1 ही रिमाइंडर देगा, और 3 to the power 4 क्या रिमाइंडर देगा? 81 है, 81 को डिवाइड करोगे 11 से, 11 से 77, तो +4 रिमाइंडर आ जाएगा, 1 into 4, फाइनल रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4, फाइनल रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4। क्लियर? ओके, ठीक है। सो अगर हम जनरलाइज करें इसी बात को, सो इफ लेट अस से वी हैव अ नंबर a to the power some multiple of totient plus some constant, and that is being divided by n, and question is what will be the remainder. So we can write this as a to the power totient to the power k multiplied by a to the power c, and that is being divided by n, तो remainder क्या होगा? So a to the power totient will give us remainder 1, अब पावर k भी है तब भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो द ओनली कंसर्न विल बी a to the power c, a to the power c हमें क्या रिमाइंडर देने वाला है? So this question is same as remainder when we are dividing a to the power c by n. This will be the answer. Clear है? ठीक है। ऑल्सो इफ a is larger than, सबसे पहली कंडीशन तो ये a and n should be co-prime, बट a n से बड़ा भी तो वैल्यू हो सकता है, अभी तक हमने वैल्यू छोटी ली है, बट बड़ा भी हो सकता है। सो इफ a is larger than n, तो फिर अल्टीमेटली लेट अस से a is equal to n into some other constant m प्लस क्या कांस्टेंट ले लेते हैं, b ले लेते हैं। सो n into m plus b, if a is equal to n into m plus b, so a to the power c will be equal to n into m plus b to the power c,
सो इफ यू आर डिवाइडिंग दिस वैल्यू बाई n, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सिंस n इंटू m इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो ये तो कोई रिमाइंडर देगा नहीं, दिस विल बी कंप्लीटली डिविजिबल, सो आवर रिमाइंडर विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस वैल्यू b टू द पावर c. तो रिमाइंडर विल बी b टू द पावर c डिवाइडेड बाई n में जो रिमाइंडर आएगा. सो टू कट इट शॉर्ट, एक एग्जांपल लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी. लेट अस से वी हैव अ नंबर 24 टू द पावर 17 and we are dividing this by 7, and question is what will be the remainder? 24 to the power 17 divided by 7, what will be the remainder? So 24 already 7 के multiple से ज्यादा है, so we can write this as 21 plus 3 because 21 is a multiple of 7 to the power 17, और 7 का totient कितना है? Totient of 7 is 6, तो 17 को we can write as 12 plus 5 divide by 7. Okay, so our remainder will be dependent on only this 3 to the power 17. 3 to the power 17 में डिपेंड होगा, तो पहले तो यही लिख दिया हमने 3 to the power 17 डिवाइड बाई 7. एडिशनली 17 is 12 plus 5, तो 3 to the power 12 तो रिमाइंडर हमें 1 ही देगा बिकॉज 3 and 7 आर को प्राइम. तो दिस विल बी बेसिकली द क्वेश्चन विल बी 3 to the power 5 डिवाइड बाई 7 में क्या रिमाइंडर आएगा? ओके, और 3 to the power 5 कितना हो जाएगा? 3 to the power 5 विल बी 3 to the power 4 is 81, 243, तो 243 डिवाइड बाई 7 what will be our remainder? So 7 3s are 21, फिर बच गया 33, 7 4s are 28, remainder will be 5. So our answer will be 5. 5 will be the answer in this case. Okay. Or wrong story short, this can also be written as 24 by 7 का remainder, जो हमें value remainder मिल रहा है, to the power remainder when we are dividing 17 by the quotient which is 6. This will be our answer straight away. ठीक है, 24 को जब 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3, और पावर में 17 को डिवाइड करो 6 से रिमाइंडर इज 5, तो 3 to the power 5 को विल बी अवर रिमाइंडर, बट सिंस 3 to the power 5 इज ग्रेटर देन 7, दैट इज वाई फिर से एक बार 7 से डिवाइड कर लोगे और आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू 5. आंसर विल बी इक्वल टू 5. क्लियर? ठीक है, मोर सच एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं. If you are dividing 2 to the power 80 by 17, so what will be the remainder? 2 to the power 80 by 17 रिमाइंडर क्या होगा? अब वैसे तो ये क्वेश्चन इजीली भी सॉल्व हो जाएगा बिकॉज 2 to the power 4 is 16, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, कि तुम देख लोगे 2 to the power 4 is 16, so you can write this as 17 minus 1 to the power 20 and that divide by 17, तो रिमाइंडर will be plus 1 only because minus 1 to the power even है. बट अभी फिलहाल क्वोशंट के मेथड से सॉल्व करते हैं, तो क्वोशंट ऑफ दिस 17 इज इक्वल टू 16 आ गया, और 80 इज अ मल्टीपल ऑफ 16. 80 का एस्टेट में 16 into 5 है, तो रिमाइंडर विल क्लियरली बी 1 आ जाएगा बिकॉज कंप्लीटली डिविजिबल है हमारा जो पावर है फ्रॉम द क्वोशंट. ठीक है, सो आंसर विल बी 2 to the power 0 which is equal to 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू आर डिवाइडिंग 9 to the power 72 by 19, what will be the remainder? So 19 का क्वोशंट आ जाएगा हमारा, क्वोशंट ऑफ 19 विल बी 18, और पावर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है 18 से. ठीक है, दिस इज 18 into 4, सो आंसर विल बी 9 to the power 0 which is equal to 1. ओके, क्लियर है? बेसिकली 9 to the power 0 की बजाय आ ये रहा था यहां पे 9 to the power 18 to the power 4 and that was being divided by 19, but clearly this is giving remainder equal to 1, so that is why we can also write it this way. Okay, next example. 17 to the power 24 divided by 23, तो रिमाइंडर क्या होगा? 23 is a prime number, quotient of 23 will be 22. 23 and 17 are co-prime, तो बस 17 to the power 24 क्या है? 24 is 22 plus 2, so our answer will depend on 17 square divide by 23. 17 square is 289, so 289 डिवाइडेड बाई 23 क्या रिमाइंडर आएगा? 23 से जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, बचा 59, 46, रिमाइंडर विल बी 13 विल बी आवर आंसर. ओके, 13 विल बी आवर आंसर. नेगेटिव रिमाइंडर में सोचना होता तो ऐसे भी सोच सकते थे यहाँ पे कि 17 स्क्वायर है, 17 कैन बी रिटन एज 23 माइनस 6, या फिर -6 रिमाइंडर आ रहा है तो -6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 23, और -6 का स्क्वायर आ जा रहा है हमारा 36. फर्दर डिवाइड करोगे 23 से, रिमाइंडर विल बी 23, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 13 आंसर आ जाएगा. ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? अप्रोच समझ में आ रहा है?
फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टू पावर 67 डिवाइडेड बाई 23, रिमाइंडर क्या होगा? 23 का टोशेंट इज 22 और 67 विल बी 66 प्लस 1, 22 का मल्टीपल प्लस 1, सो आंसर विल बी 3 टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 3। अब फटाफट फटाफट सेकंड में सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है, और कम से कम स्टेप में करना है, कम से कम स्टेप में करना है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 टू पावर 1492 divide by 100, so what will be the remainder? 3 to power 1492 divide by 100, so what will be our remainder? So 100 का टोशन क्या आएगा? टोशन ऑफ 100 इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, टोशन आ जाएगा हमारा 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5, तो दैट विल बी 40। सो पावर को 40 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा? दिस विल बी 40 इंटू रिमाइंडर कितना बचेगा, बेसिकली बस रिमाइंडर ही देखना है हमको। सो 1400 प्लस 92, तो 12 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, 40 का मल्टीपल प्लस 12, यही तो आएगा, ठीक है, 40 का मल्टीपल प्लस 12 आ जाएगा। सो बेसिकली अवर आंसर विल बी डिपेंडेंट ऑन 3 टू द पावर 12 व्हेन डिवाइड बाय 100, तो रिमाइंडर क्या होगा? ओके, ठीक है, 3 टू द पावर 12 व्हेन डिवाइड बाय 100, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? क्या लिख सकते हो यहाँ पे? तो 3 टू द पावर 3 इज इक्वल 27, 3 टू पावर 4 is 81, 3 to power 5 is 243, 3 to power 6 is 729. So we can write this as 729 का होल स्क्वायर and that is being divided by 100. तो रिमाइंडर क्या आएगा? 729 is 700 plus 29. तो रिमाइंडर हमारा 100 से डिवाइड करें 29 बन रहा है, यानी कि आंसर विल डिपेंड ऑन 29 का स्क्वायर, बिकॉज बेसिकली दिस नंबर इज 700 प्लस 29 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100, और क्योंकि 700 कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमारा आंसर डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ 29 के स्क्वायर पे, 29 के स्क्वायर पे। सो आंसर विल बी 841, बट 841 लार्जर देन 100, तो फिर से एक बार 100 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर फाइनली विल बी 41 विल बी अवर आंसर। बट जब भी 100 से डिवाइड करो तो एक बात और ध्यान रखना है कि इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 100, दैट इंप्लाइज कि आंसर विल बी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस लार्ज नंबर 3 टू पावर 1492, 3 टू पावर 1492। तो लास्ट 2 डिजिट्स निकाल के भी आंसर कर सकते हो, और या फिर आंसर देख के लास्ट 2 डिजिट्स भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज 100 से डिवाइड करोगे तो 100 का जो मल्टीपल है वो तो चला जाएगा, बचेगा सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स। बेसिकली अगर नंबर हमारा है 25682, सो दिस इज 25600 प्लस 82। अब ये पार्ट तो 100 का मल्टीपल है, तो यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर आएगा सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से बनने वाले नंबर से, विच इज ऑल्सो इन दिस केस 41 विल बी द फाइनल रिमाइंडर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is 37 to the power 371 divided by 17, so what will be our remainder? 17 is a prime number, quotient of 17 will be 16, और 317 क्या आ जाएगा? 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से 32 जाएगा, 51 बचा, रिमाइंडर विल बी 3। हमारा कंसर्न सिर्फ रिमाइंडर से है, ये ध्यान रखना हमेशा। सो 37 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 17 में कन्वर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। ऑल्सो 37 इज ग्रेटर देन 17, तो 37 को डिवाइड करोगे 17 से, सो दिस विल बी 34 प्लस 3 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 17, तो 3 टू पावर 3 विल बी अवर आंसर विच विल बी 27, बट 27 अगेन 17 से बड़ा है, तो फिर से एक बार रिमाइंडर लोगे और आंसर आ जाएगा हमारा 10। तो कभी कभी स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे, बट ध्यान नहीं रखना है पहले स्टेप में एक साथ कर सकते हो, 37 को तुम 34 प्लस 3 लिख सकते हो, तो नेक्स्ट स्टेप पे डायरेक्टली यहाँ पे 3 क्यूब लिख लोगे, 3 क्यूब लिख लोगे और फिर आंसर कर दोगे, ठीक है, विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 37 बाई 17 में जो रिमाइंडर मिल रहा है टू द पावर 371 डिवाइड बाई टोशेंट ऑफ 17 विच इज 16, यहां पे जो रिमाइंडर मिल रहा है दैट विल बी आवर पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा? दिस विल बी 3 टू द पावर 3, और फर्दर क्योंकि 27 आ रहा है तो एक बार फिर से 17 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 10। ओके, विच एवर वे सूट्स यू, जो भी तरीका समझ में आए, बोथ आर इक्वली गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पावर 1004
and that is being divided by 25. So what will be our remainder? 2 to the power 1004 that is being divided by 25. तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? What will be the remainder? Quotient of 25 क्या आ जाएगा? 25 है 5 स्क्वायर, तो quotient will be 25 into 4/5. हमें स्क्वायर से तो मतलब है नहीं, 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 20. 20 इज द quotient, तो 1004 इज 20k प्लस 4. 20 के मल्टीपल से 4 ज्यादा है. सो अवर क्वेश्चन इज नाउ 2 to the power 4 डिवाइड बाई 25. व्हाट विल द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 2 to the power 4 ओनली, 16 ओनली. सो आंसर हमारा 16 ही हो जाएगा, 16 ही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्टीन टू द पावर 125 डिवाइडेड बाई 16. व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर? 13 to the power 125 divided by 16. What will be our remainder? 16 का quotient, 16 is 2 to the power 4. The quotient will be 16 into 1/2, which is equal to 8. 8 will be the quotient, और 120 plus 5 लिख सकते हो इसको. 120 हमारा 8 का मल्टीपल है, so basically only 5 will remain. So the question will be 13 to the power 5 डिवाइड बाई 16. रिमाइंडर क्या होगा? अब 13 to the power 5 कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगा, तो 13 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको? 16 माइनस 3. 16 माइनस 3 लिख सकते हो, ठीक है. तो 16 माइनस 3 लिख सकते हो, या फिर क्योंकि पावर ऑड है तो 13 इंटू 13 टू द पावर 4 कर लोगे, तो 13 इंटू 16 माइनस 3 टू द पावर 4 एंड दैट डिवाइड बाई 16. तो रिमाइंडर क्या होगा? अब इस पार्ट से तो 13 ही मिलेगा रिमाइंडर, बट यहां से रिमाइंडर मिलेगा माइनस 3 टू द पावर 4. तो दिस विल बी 13 इंटू माइनस 3 टू द पावर 4 विच इज 3 टू पावर 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है. तो 13 इंटू 81 डिवाइड बाई 16, और 81 रिमाइंडर दे रहा है 1. 13 इंटू 1 आंसर विल बी 13 ओनली. आंसर विल बी 13 ओनली. अदरवाइज यहां पे माइनस 3 टू पावर 5 करते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, आंसर तो तब भी वही आता, बट निगेटिव में आ रहा था तो फिर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता उसको. डिवाइड बाई 16 करोगे, सो दिस विल बी माइनस 243 डिवाइड बाई 16. तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी माइनस 3. माइनस 3 आएगा, सो यू विल बी एडिंग डिवाइजर वंस अगेन, और आंसर फाइनली आ जाएगा 13. फाइनली द आंसर विल बी 13 ओनली. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 to the power 111 डिवाइडेड बाई 11. सो रिमाइंडर क्या आएगा? 50 to the power 111 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर क्या आएगा? 50 इज ग्रेटर देन 11. 50 को 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आने वाला है? रिमाइंडर आने वाला है हमारा 6. आप स्ट्रेट में लिख सकते हो. और 111 को डिवाइड करोगे क्वोशिएंट ऑफ 11 से, क्वोशिएंट ऑफ 11 इज 10. 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर विल बी 1. तो आंसर विल बी 6 to the power 1 ओनली. इन वन स्टेप द आंसर विल बी 6 ओनली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 222 to the power 3333 plus 333 to the power 2222 plus 444 to the power 5555 and that is being divided by 11. So remainder क्या आएगा? What will be remainder? So all numbers, all base values 222, 333, 444 ये सारे के सारे वैल्यूज हमारे 11 से बड़े हैं, तो इनका 11 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, रिमाइंडर निकाल लोगे. और एडिशनली पावर हमारा किसके डिवाइड करोगे? क्वोशिएंट ऑफ 11 इज 10. सो पावर को डिवाइड करने पे तो हमें यूनिट डिजिट में रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 3 विल बी रिमाइंडर, 2 विल बी रिमाइंडर एंड 5 विल बी रिमाइंडर. और 222 दिस इज 220 प्लस 2 और 220 हमारा 11 का मल्टीपल है. सो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 2 to the power 3 प्लस सिमिलरली 330 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 11, तो 3 to the power 2 प्लस 440 इज ऑल्सो मल्टीपल, तो 4 to the power 5 एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 11. सो रिमाइंडर क्या होगा? अब क्वेश्चन आसान हो गया. 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 4 to the power 5, 4 to the power 5 क्या रिमाइंडर आएगा? 4 to the power 5 इज बेसिकली 2 to the power 10, 2 स्क्वायर की पावर 5 है, 2 to the power 10 ही है, दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 11. अगेन 10 क्वोशिएंट है हमारा, 2 to the power 10 हमें रिमाइंडर 1 ही देगा बिकॉज 2 and 11 आर को प्राइम.
तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, बट इस बार एडिशन हो रहा है, ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन है, तो इस 1 को लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। सो 8 + 9 17 + 1 18 आ गया, और 18 डिवाइड बाई 11 विल गिव अस रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 7, फाइनल रिमाइंडर इन दिस केस विल बी इक्वल टू 7 विल बी आवर आंसर, ना आंसर हो जाएगा 7 फाइनली। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इन दिस सेशन, फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस क्वेश्चन का, बट मजा आएगा इस क्वेश्चन को समझ के। सो द क्वेश्चन इज p is a prime number greater than 30. When p is divided by 30, the remainder is r. So how many different values of r are possible? The question is saying p is a prime number that is greater than 30. When p is divided by 30, the remainder is r. How many different values of r are possible? Now pause the video, try to understand the question. Question exactly हमसे चाह क्या रहा है? What is the demand of the question? और अकॉर्डिंगली क्या आंसर होना चाहिए, कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? पॉज करो, थोड़ा सा टाइम लो, टेक योर टाइम, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, टाइम अपना लो, बट समझने की कोशिश करो व्हाट दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। सो जो गिवन इन्फॉर्मेशन, जो चीज हमने सीखी है इस सेशन में, क्या वो हेल्प कर सकती है हमें? क्या चीज हेल्प कर सकता है इस क्वेश्चन में? ठीक है, सो p इज अ प्राइम नंबर, दैट इज फर्स्ट थिंग दैट वी नो, प्राइम नंबर है, और p इज प्राइम नंबर दैट इज ग्रेटर देन 30। ओके, प्राइम दैट इज ग्रेटर देन 30। व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 30, द रिमाइंडर इज r, रिमाइंडर इज r, डेफिनेटली r विल बी लेस देन 30 बिकॉज रिमाइंडर है जब डिवाइड करो 30 से। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r आर पॉसिबल? सो इन जनरल अगर मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता, हमें कुछ भी नहीं पता होता, तो रिमाइंडर कुड हैव बीन एनी वैल्यू, इट कुड हैव बीन 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 एंड सो ऑन, एनी वैल्यू टिल 29। सो रिमाइंडर के लिए 30 वैल्यूज वुड हैव बीन पॉसिबल इन जनरल इफ p कुड हैव बीन एनी नंबर। ठीक है, अगर p कोई भी नंबर होता इन जनरल, कॉम्पोजिट भी हो सकता था, तो उस केस में हमारा रिमाइंडर कुछ भी वैल्यू होता, बट क्वेश्चन इज सेइंग दैट p इज अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, एंड सिंस p इज अ प्राइम नंबर, तो p एंड 30 विल बी को प्राइम। p अगर प्राइम नंबर है तो p एंड 30 विल बी को प्राइम, these two numbers will be co-prime, and if they are co-prime they will have no common factor, they will have no common factor। ठीक है, so what does that imply when we are saying that p divided by 30 gives us remainder equal to r? If we write this in terms of remainder theorem, we can write this as p is equal to some multiple of 30 plus r। ये तो मतलब हुआ some multiple of 30 plus r। okay, now just in case think about it, if remainder is equal to 2, if remainder is equal to 2, then p becomes equal to 30k plus 2। तो क्या 2 कॉमन नहीं आ जाएगा? This will be 2 into 15k plus 1, and in that case p will not be prime because this is a composite number, 2 into 15k plus 1, तो फिर p प्राइम थोड़ी हो पाएगा, cannot be prime। Similarly, if r was equal to let us say 5, तो p will be in that case will be equal to 30k plus 5, 5 कॉमन आ जाएगा, so this will be 5 into 6k plus 1, अगेन फिर p प्राइम नहीं हो पाएगा, प्राइम नहीं हो सकता फिर, बिकॉज इसके दो फैक्टर्स आ रहे हैं 5 एंड 6k plus 1। ठीक है, और 6k plus 1 डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, isn't it so? बिकॉज p हमारा प्राइम नंबर ग्रेटर देन 30 है, दैट इज ऑल्सो गिवन। कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ग्रेटर देन 30 प्राइम नंबर है। क्या ये पार्ट क्लियर है? सो डेफिनेटली p विल नॉट बी प्राइम इफ यू आर गेटिंग अ रिमाइंडर दैट हैज अ कॉमन फैक्टर विद 30। इफ यू आर गेटिंग अ रिमाइंडर दैट हैज अ कॉमन फैक्टर विद 30, अगर 30 के साथ कॉमन फैक्टर होगा तो फिर कॉमन ले लोगे उसको, और वी विल हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स इन दैट केस p के। ठीक है, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 के अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट 1 देयर विल बी 2 मोर फैक्टर्स, तो डेफिनेटली p फिर प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे ये है कि r और 30 में कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है कि प्राइम नहीं होगा। इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर देन दे विल नॉट बी प्राइम। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, फॉर एग्जांपल इफ p इज इक्वल टू 30k plus 7, ठीक है, तो अब तो कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे बिकॉज 30 एंड 7 आर को-प्राइम, दीज आर को-प्राइम नंबर्स। सो एज लॉन्ग एज 30 and the remainder are co-prime, p can be prime, p can be prime, very important। ठीक है, as long as 30 and r are co-prime, p can be prime। तो अब कितने co-prime नंबर्स है 30 से छोटे? कैसे निकालोगे? टोशन फंक्शन से निकलेगा, टोशन फंक्शन से निकलेगा। तो व्हाट विल बी टोशेंट ऑफ 30?
30 is 2 into 3 into 5. So quotient will be 30 into 1 by 2 into 2 by 3 into 4 by 5. So 30 से गया 30, 4 into 2 comes out to be 8. So there are 8 numbers less than 30 that are co-prime to 30. Co-prime to 30. So answer will be 8 only. How many different values of R are possible? So values are 8. 8 values are possible. And what will be those values? Values क्या होगा? 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11 होगा, 13 होगा, देन 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं, 17 होगा, 19 होगा, 23, 29. ठीक है, टोटल 8 numbers, all of them are prime numbers. All of them are prime numbers. Okay, clear है? So these were the values of remainders that are possible if p is a prime number. क्या ये क्वेश्चन अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल, बट यू नीड अंडरस्टैंडिंग. Isn't it so? So that is all in this session. I believe सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा और मजा आएगा बहुत सारा सेशन में, चीजें सीखने को मिली होंगी. एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स कि तुम्हें सेशन कैसा लगा. एंड इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर इन एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर, तो मेक श्योर टू फील फ्री टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल, एंड आई विल क्लियर दैट डाउट ऑल्सो. ठीक है, और जो बाकी लोग देखते हो, जो लोग कमेंट नहीं करते हो, तो कभी कभी कमेंट चेकआउट कर लिया करो, क्योंकि अगर ऐसे डाउट किसी ने पूछे हैं तो तुम्हारे लिए भी चीजें बहुत क्लियर होंगी और समझ में आएंगी. चलो इतना ही रखते हैं. एंड इफ यू लाइक द सेशन, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल, एंड इफ पॉसिबल स्प्रेड द वर्ड, और दोस्तों से शेयर करो. चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.